اہل سنت، علماء ذوی الاحترام، ارباب علم و دانش، دور دراز سے تشریف لانے والے عوام اہل سنت، نیٹ کے توسط سے سننے والے جملہ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أهل التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت العلماء کے واسطے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بقبول منو دست دامانی آل رسول۔ حضرات گرامی وقار، آپ کے لیے اور میرے لیے یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت، چشم عنایت مفتی اعظم، محافظ فکر رضا، حضور شہباز دکن حضرت علامہ مولانا مفتی قاری
مجیب علی رضوی علیہ الرحمت و رضوان کے عرس پاک کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ سلسلہ محبت کافی دیر سے جاری و ساری ہے۔ رات کے تقریباً 2:20 ہو چکے ہیں اور یہ سفر محبت انشاءاللہ نماز فجر تک جاری و ساری رہے گا۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یکے بعد دیگرے علماء ذوی الاحترام مشائخ اعظام تشریف لا رہے ہیں، اور میرے بعد بھی جماعت اہل سنت کی عبقری شخصیت جس کو زمانہ قائد ملت کہتا ہے، ان کی تشریف آوری ہوگی، اور خانقاہ مسولی شریف کے صاحب سجادہ حضور گلزار ملت بھی تشریف لائیں گے، اور جماعت اہل سنت کی سب سے قدیم اور علمی شخصیت اپنے علمی جواہر پارے لٹا کر چلی گئی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی حضور محدث کبیر کا سایہ ہم غرباء اہل سنت کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ کچھ دیر میں بھی آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، لیکن اس خیال کے ساتھ آیا ہوں کہ جس جذبے اور جس جوش کے ساتھ صابر بھائی کے ہمراہ آپ تھے، جبکہ آپ اگر کچھ نہیں بھی بولتے تو وہ بیچارے صابر ہیں، ہر حال میں صبر کر لیتے، لیکن مجھے آپ جانتے ہیں میرا نام شہزاد ہے اضافت مقلوبی کے ساتھ، اصل میں زادِ شاہ ہے، اور بادشاہ کا بیٹا جلد جلال میں آ جاتا ہے۔ اور میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ خاموش ہو بھی گئے تب بھی میں مجمع میں آگ لگانے کی سکت اور طاقت رکھتا ہوں بفضلہ تعالی۔ اور یہ اپنی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے امام کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ خیال میرا صحیح ہے نا؟ آپریٹر صاحب اس کی آواز تھوڑی صاف کیجیے۔ ہم لوگ، ہمارا مسلک، ہماری بات بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو آواز پھیلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بس آواز بڑھا دیجیے تاکہ یہ مجمع یہ کہتا رہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اسی جیتے جاگتے ماحول میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہوں میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، اور اس خیال کے ساتھ کہ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ کل لیلۃ ثلاث مرات وکل نہار ثلاث مرات حبا لی وشوقا الی کان حقا علی اللہ تبارک و تعالی ان یغفر له فی تلک اللیلۃ وذالک اليوم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 3 بار درود بھیجتا ہے اور رات میں 3 بار درود بھیجتا ہے۔ ابھی آپ نے جناب صابر رضا رضوی سے یہ کلام سنا تھا، جو عاشق مصطفیٰ حضرت کفایت اللہ کافی مراد آبادی کا محبتوں بھرا کلام ہے، جس میں درود پاک کی آپ کو وصیت اور نصیحت کی گئی ہے۔ اس شعر کو ذہن میں رکھیے اور اس جملے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دن میں مجھ پر 3 بار درود بھیجتا ہے، کتنی بار؟ اور اس کے بعد فرمایا رات میں 3 بار درود بھیجے، مگر شرط یہ ہے حبا لی و شوقا الیہ،
किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में भेजता हूं। सरकार फरमाते सिर्फ मेरी मोहब्बत के लिए। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा, इसमें एक लफ्ज है हुब्बन ली, मेरे लिए। ये मेरे का लफ्ज बड़ा प्यारा है। सरवरे कायनात ने जब रब की बारगाह में कहा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुरान की आयत करीमा है। रब ने फरमाया महबूब ये कहो मेरी नमाज तेरे लिए, मेरी इबादत तेरे लिए, मेरा दुनिया में रहना तेरे लिए, दुनिया से बज़ाहिर जाना तेरे लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को महबूब की ये अदा इतनी पसंद आई, फरमा दिया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। महबूब तूने अपनी नमाजों को हमारे लिए कह दिया है, हमने फतेह तेरे लिए कर दी है। हमने तेरी वजह से तेरे अगलों की खताओं को माफ किया है, पिछलों की खताओं को माफ किया है। कहीं फरमाया अलम नशरह लका सदरक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे सीने को खोल दिया है। वरफाना लका जिक्रक, हमने कहा कुरान पाक का मिजाज ये मिल गया है, तू अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कर तो सही, अल्लाह कायनात तेरे लिए कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुब्बन ली व शौकन इलैया, मेरी मोहब्बत में। फरमाया अल्लाह के जिम्मे करम पर है कि वो उस बंदे को उसी रात में बख्श दे या उसी दिन में बख्श दे। अगर मैं कब्रिस्तान में बैठ के ये जुमला पढ़ देता तो शायद कब्रिस्तान के मुर्दों की आवाज मुझे तो नहीं आती, मगर यकीन है कि मुझे वो काफी और वाफी हो जाते। मगर आपका जज्बा खत्म हो गया। अगर ऐसा कुछ है तो याद रखिएगा, फिर मुझे तकरीर खत्म करने में देर भी नहीं लगती है। वमा अलैना इल्लल बला, समझ गए आप? हाँ, ये देखिए वो भी सर हिला करके कह रहे हैं हाँ ठीक है, खत्म कर दीजिए। नींद की हालत में यही हाल होता है। जरा मोहब्बत से बोलिए तो सही, सुभान अल्लाह। अब जरा जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दाई जानिब भी मेरे लोग बैठे हैं। शहजादे हुजूर शहबाज दक्कन बाई जानिब है और दिल बाई जानिब होता है, और जो दिल के ज्यादा करीब होता है उसकी जिम्मेदारी भी कुछ ज्यादा होती है। और दाएं को बाएं पर फजीलत है, और आप जानते हैं कि दाएं हाथ में अल्लाह ने बड़ी कुव्वत रखी है जो बाएं से इस बुनियाद पर भी अफजल है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ के लोग मुकम्मल मजबूती के साथ बैठें ताकि मैं अपने उस उन्वान पर कुछ देर गुफ्तगू कर सकूं, है ना? गौर फरमाइएगा, मेरा उन्वान है ईमान जाने ईमान। सुभान अल्लाह। ईमान बड़ा पाकीज़ा लफ्ज है। ईमान का माना क्या आता है? अरबी में जब ईमान का हम माना तलाश करते हैं तो उसके लिए उसका सिनोनियम, उसका मुतरादिफ लफ्ज आता है इज़हान। ईमान का माना होता है यकीन। भाई इधर तवज्जो कर तो गुफ्तगू करूं, चेहरा मोड़ के नहीं, तकरीर इधर हो रही है। आप किसी अहले गैरे की बारगाह में नहीं है, हुजूर शहबाज दक्कन की बारगाह में बैठे हैं। और याद रखिएगा इस मजमे को हिंदुस्तान के नुमाया मजमों में शुमार किया जाता है। तो अगर आप अपनी अलामत और पहचान खो देंगे तो फिर मुझे ख्याल कुछ दूसरा आने लगेगा। गौर फरमाइएगा, ईमान का माना होता है यकीन। अरबी में उसी के लिए उसी का मुतरादिफ लफ्ज आता है इज़ान, और ईमान अमन से बना है। अमन का माना आप जानते हैं चैनो सुकून। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बात याद रखिएगा, इमारत वही बाकी रहती है जिसकी बुनियाद बड़ी मजबूत होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हालांकि इसके अगले जुमले भी मेरे जहन में है, मगर मैं इसी को मुस्तदल बना रहा हूं।
रसूल करीम ने इरशाद फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उनमें पहली चीज ये है कि अल्लाह को एक माना जाए, और दूसरी चीज ये है कि ये अकीदा रखा जाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उसके बंदे हैं। हमने कहा जिसकी बुनियाद मजबूत होती है वो इमारत भी बाकी रहती है। हमारे ईमान की बुनियाद क्या है? इश्क़ मुस्तफ़ा है। हमारे ईमान की बुनियाद क्या है? मोहब्बत रसूल है। आप कहेंगे मौलाना कोई दलील? मैं कहूंगा कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरी बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कुरान कहता है ईमान वालों अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंचा ना करो, और नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह ना पुकारो जिस तरह तुम एक दूसरे से बात किया करते हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे आमाल अकारत हो जाए। व अंतुम ला तशऊरूना, और तुम्हें पता भी ना चले। पता चला इश्क़ रसूल हमारे ईमान की बुनियाद है। अगर ये बुनियाद गिर रही है, अदब खत्म हो रहा है, एहतराम दूर हो रहा है, मोहब्बत दूर हो रही है, इश्क दूर हो रहा है, तो कुरान कहता है अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरूना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा। रोजे बर्बाद हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तिलावत कुरान तुम्हारी पढ़ी हुई बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। पता चला बुनियाद मजबूत है तो ईमान बचा हुआ है। हमने कहा आगे बढ़। ईमान किसको कहते हैं? अगर ईमान को इस्तिलाह में समझता है तो सुन, रसूल करीम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, एक इंसानी शक्ल में आए। आने के बाद अर्ज करते हैं मल ईमान, हे मेरे आका बताइए ईमान किसको कहते हैं? सरकार ने इरशाद फरमाया अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं ए जिब्रील अमीन सुनो, हालांकि हदीस में जिब्रील का लफ्ज नहीं है, मगर चूंकि आए जिब्रील थे, सरकार ने फरमाया था ना हाजा जिब्रीलो अताकुम युअल्लिमुकुम मालिमा दीनिकुम, ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारे दीन के उसूल समझाने के लिए आए थे। इसलिए तर्जमा उसी पेशतर में कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया ईमान ये है कि तुम अल्लाह को मानो, उसके रसूलों को मानो, कुरान को मानो, उसकी सारी किताबों को मानो, आखिरत को मानो। हमने कहा इमाम अहमद रजा खान आप बताइए ईमान किसको कहते हैं? आला हजरत ने फतावा रज़विया में तारीफ करते हुए कहा ईमान कहते हैं हर बात में मुस्तफा को सच्चा मान लिया जाए, और ईमान इसको कहते हैं कि नबी की सदाकत को दिल से माना जाए, इसका नाम ईमान है। पता चला सच्चा मुसलमान वही होगा जो इमाम अहमद रजा खान की बोली में कहेगा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, हुजूर कायदे मिल्लत, खलीफा हुजूर ताज शरिया, उर्से शहबाजे दक्कन, शहजादे शहबाजे दक्कन। अल्लामा उस्मान साहब आहिस्ता आहिस्ता जीना चढ़ रहा हूं, फौरन छत पर चढ़ जाऊंगा तो फिर मसला दुरुस्त नहीं रहेगा। अभी आप सिर्फ सब्र कीजिए और सब्र से काम लीजिए, इंशाअल्लाह फकीर सब कुछ अर्ज करेगा। तवज्जो है। ईमान की मैंने इस्तिलाही तारीफ की। अकॉर्डिंग ऑफ डिक्शनरी अगर देखा जाए तो ईमान का माना यकीन, इज़ान, ईकान सब तरह के अल्फाज आते हैं, मगर माद्दा इश्तिकाक जिससे ये बना है उसका माना वो किस लफ्ज से बना? अमन से। अमन का माना चैनो सुकून, अमन का माना बेखौफी। जब इस पर नजर पड़ी इमाम अहमद रजा खान की तो कहने लगे खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है। बोल भाई अगर जिंदा है तो बोल, मुर्दों से शिकवा नहीं होता है। मेरा इमाम कहने लगा तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मैंने कहा ताजुश शरिया मेरे मुर्शिदे गिरामी वकार आप
آپ بھی تو اپنے دادا کے علوم کے وارث ہیں, آپ بھی تو مفتی اعظم کے طرز پر کام کر کے گئے ہیں. یحملوا ھذا العلم من كل خلف عدوله ينفون تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. اس کا آپ بھی تو مظہر سے آپ نے یہ کام کیا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں تجھے کیا فکر ہو اختر, تیرے یاور ہے وہ یاور, بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے. میں بھی تاج الشریعہ کا مرید ہوں. عرض کرنے لگا شہزاد کو ستائے گا کیوں کر غم حیات, جب اس کو اپنا شیطان بنایا حضور نے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, آپ نے ایمان کو ڈیفائن میں نے کیا, آپ نے ڈیفینیشن کو سن لیا ہے, پریبھاشا کو سن لیا ہے. اب یہ بھی تو بتا دوں کہ ایمان امن و امان کیسے دیتا ہے, ایمان بچاتا کیسے ہے, جہنم سے آزادی کیسے دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ تھوڑی کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ نہیں کہا تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں, خلد میں پہنچا رضا, پھر تجھ کو کیا. ہم نے کہا سن, سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے عاشق ہیں جن کے ہم مقلد ہیں. زمانہ انہی کو امام اعظم کہتا ہے, ابو حنیفہ کہتا ہے, نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے نعمان ابن ثابت؟ اگر ان کے تعلق سے سید شاہ تراب الحق صاحب علیہ الرحمہ کی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں جو لکھی ہے, اگر اس کو پڑھا جائے, الموفق کا مطالعہ کیا جائے, تو سرور کائنات کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تھے. کہا تھا اللہ کے رسول, اللہ نے لقمان کے لیے رضی علیہ السلام ان کے لیے حکمت کے دہانے کھول دیے تھے. ایک حکمت بیان کرتے تھے, ہزاروں حکمتیں دروازہ کھول کر کھڑی رہتی تھی اور دست بستہ حاضر رہتی تھی. جبریل پیغام سنا کر کے چلے گئے. نبی کے دل میں خیال آیا اے اللہ میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوتا. ارے وہ نبی یہ برحق ہے جن کے دل میں اگر خیال آ جائے تو قرآن کہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. ان کے دل کے معاملے یہ ہے, اگر دل میں خیال آتا ہے قبلہ چینج کر دیا جاتا ہے, دل میں خیال آتا ہے قبلہ بدل دیا جاتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا, کچھ دیر میں پھر جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور کہا ہے تمہاری امت میں بھی ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا جو بے شمار حکمتوں کا مالک ہوگا, تمہارے دین کو آگے بڑھائے گا. حضرت انس ابن مالک بیٹھے تھے, میرے نبی نے قریب بلایا, اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور کہا انس جب نعمان آ جائے اس کو یہ امانت پہنچا دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ ہے, کہ سامنے والے عجیب کیفیت میں بیٹھے ہوئے. ارے بھائی کھونا ہے تو کھو جائیے, مگر کس کیفیت کے ساتھ, جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گئے. جملے پر توجہ کر رہے ہیں. سیدنا امام اعظم کی کتاب ہے جس کا نام ہے مسند امام اعظم المعروف سنن ابی حنیفہ. میں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ایمان امن و امان کیسے عطا کرتا ہے, اس دعوے کو ثابت کر رہا ہوں. حضور جانے ایمان ہے, اس پر فقیر کی دلیلیں آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. مگر اجازت دیجئے گا کچھ بولتا چلا جاؤں. 45 منٹ کا وقت دیا ہے اور سمندر مجھے تھما دیا ہے. کٹورا دے کر سمندر کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا مولانا اس کٹورے میں سمندر کو بھر لو. بھائی میں کیا کروں, بھر تو لیتا, اگر میں خواجہ پاک کے دور میں ہوتا اور ان کے ہاتھ ان کی طرف سے کٹورا لے کر کے جاتا تو ایک انا ساگر کیا پورا سمندر بھر کے لے آتا. لیکن کوشش کر رہا ہوں خواجہ پاک کے در سے استغاثہ کرتے ہوئے. ذرا توجہ فرمائیے گا. سرور کائنات کی بارگاہ میں ایک یہودی بچہ رہتا تھا. امن و امان ایمان کیسے عطا کرتا ہے؟ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے, وہ آیا نہیں, کئی دن ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا حضور بیمار ہو گیا ہے. سرور کائنات نے فرمایا انہدوا بنا لعود جارنا الیہودی, چلو اپنے یہودی پڑوسی کو دیکھنے چلتے ہیں. اب اس جملے کو کوئی سن سکتا ہے سلے کلی, نتیجہ نکالے گا. طور سے شہباز دکن میں یہ مسئلہ بیان کر کے آیا ہے نا کہ یہودیوں کے ساتھ مزاج پرسی کے لیے یہودیوں کی جایا جا سکتا ہے, ان سے اتحاد کیا جا
जा सकता है? मैं कहूंगा हाँ हाँ बिला शुबा किया जा सकता है, मगर एक शर्त है, किससे इत्तिहाद किया जाएगा? यही सवाल किया था मेरे इमाम से मलफूज शरीफ के अंदर। सवाल यह किया कि हुजूर तो काफिरों के साथ नरमी बरतते थे। मेरे इमाम ने कहा, जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी शरीफ में फरमाया है, हुजूर उन्हीं काफिरों के साथ नरमी बरतते थे जिनके बारे में सरकार को इल्मे गैब से पता था कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे शहबाज़े दकन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साजिद अली साहब किबला फिर तशरीफ ले आए, मगर घबराइएगा नहीं, दोबारा तकरीर नहीं करेंगे। हाँ, मजा मजा गुजर गया जिसका वक्त गुजरना था, अब मेरा वक्त चल रहा है ना? हाँ, माजी को मत देखिए, अब प्रेजेंट पे नजर रखिए। जब मैं गुजर जाऊं तो फिर प्रेजेंट पे नजर रखिए। वो प्रेजेंट करते करते इंशाअल्लाह फज्र की नमाज का वक्त आ जाएगा। प्रेजेंट पर नजर करते रहेंगे, लोग प्रेजेंट करते रहेंगे। तवज्जो है? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ गए, फवजदहु फिल मौत। उसको मेरे नबी ने क्या देखा कि ये इसकी हालत बड़ी खराब है, सकरात के आलम में इंतकाल होने वाला है, कैफियत बड़ी दिगरगू है। मेरे हुजूर ने फरमाया, इशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, जरा गवाही दे दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद बरहक नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना इरशाद फरमाया, उसको दावत व तबलीग की और मेरे नबी ने कलमा इस्लाम पेश किया। उसने अपने बाप को देखा, हदीस के अल्फाज फलम युकल्लिमहु अबूहु, उसके बाप ने कुछ कहा नहीं। फिर मेरे नबी ने तबलीग को जारी रखा और रखने के बाद सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, इशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। उसके बाद उसके बाप ने कहा, इशहद लहू, बेटा अब मैं तुझसे क्या कहूं? जरा गौर फरमाइएगा जनाबे अकील साहब, आप तो अकील अक्ल से बने हैं या अक्ल वसी वाली अक्ल से बने हैं जिसको दियत कहा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह अक्लमंद है, थोड़ी तवज्जो फरमाइए। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब दोबारा तबलीग फरमाई ना, तो उस शख्स के बाप ने देखकर कहा, बेटा जो ये कह रहे हैं उसको मान जा। अब उसने कह दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर उसने कलमा इस्लाम को कबूल किया। अभी कैफियत दिगरगू थी, अभी ऐसी हालत नहीं थी कि गरगरे की कैफियत आ गई हो, इसलिए कि मालम युगरगिर की जो कैफियत होती है उसमें इस्लाम कबूल नहीं होता। लेकिन अभी वो कलमा पढ़ने के लायक था। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। मैंने एक जुमला अर्ज किया था, ईमान अमन से बना है और ये ऐसा अमन व अमान है जहन्नम से बेखौफ कर दिया करता है। सरवरे कायनात ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया और कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलक़ज़ा बी लशमतम मिनन्नार, ए अल्लाह तेरा शुक्र और एहसान है कि तूने मेरी वजह से एक जान को जहन्नम से आजादी अता फरमा दी है। अमन मिला? बोलो मिला कि नहीं? हाँ, मोबाइल जेब में रखो, वीडियो तुम तो बिल्कुल पास से बना रहे हो, सर चढ़ करके आप गुनाह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जो करते हैं बचते हैं, उनको बचने दीजिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक रिवायत और सुना दूं, ईमान अमनो अमान देता है, अकीदा बचा के जाइए। क्या वजह है कि हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद अली साहब हो, हजरत अल्लामा मौलाना सुहेल साहब हो, मौलाना उस्मान साहब हो, या हमारे मौलाना रफीक साहब हो, और भी बहुत से हजरात हैं, क्या वजह है जब जाए तो कोई सुले कुल्लियत पर बम फोड़ रहा है, कोई राफजियत को मौत दे रहा है। साबिर भाई ने अभी मौत दे दी। कुरान कहता है, कुल मौतू कुल मूतू बिगैज़िकुम, मर जाओ ना अपने गैज़ो गज़ब में। और मेरा इमाम कहता है, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम थोड़ा। समझ गया? मैंने ये जवाब दिया है। साबिर भाई चले गए? हाँ, जवाब दिया है मैंने, इसलिए जवाब दिया है, कल को कोई ये ना कहे कि क्या उनसे मुझे भी हुआ, वहां तो मौत दी जा रही थी, मर जाए, ये कोई कलाम है? हमने कहा देख, कुरान कह रहा है, कुल मूतू बिगैज़िकुम। समझ रहे हैं आप? और एक जुमला आपसे अर्ज कर देता हूं, खुश अकीदा बनकर ही रहिएगा। जो खुश अकीदा होता है, कायनात उसी की होती है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला और एक था फिरौन का चाहने वाला किब्ती। इसने क्या कहा कि तुम्हारे मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ जादू कर दिया है, हम पानी के करीब जाते हैं समंदर के तो वो खून हो जाता है। उन्होंने कहा फिर का प्यास बहुत लग रही है, तू ऐसा कर, तू पानी लेकर के आ, तेरे लिए तो खून नहीं बनेगा। उसने कहा ठीक है, जब तू कह रहा है पड़ोसी है, चल तेरा थोड़ा ख्याल कर लेता हूं। वो पानी लेकर के आया। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले उस पाकीज़ा उम्मती के हाथ में पानी रहा, वो पानी पानी ही था। और जैसे ही उसने बढ़ाया उसके हाथ में वो खून की शक्ल में हो गया। उसने कहा मियां सोल, तेरे चेहरे को मूसा तो पहचानते ही है, मूसा का चाहने वाला पानी भी पहचानता है। बात समझ गए ना? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के इस रिश्ते को समझिएगा। ये कायनात भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जमीन भी सुन्नी है, कायनात सुन्नी है, ये शरीर लोग ही तो सुन्नी नहीं है, शरीर जिन ही तो सुन्नी नहीं है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये आसमान भी सुन्नी है, ये जमीन भी सुन्नी है। अगर इस पर दलील देने की बारी आए तो वक्त लग जाएगा, दलील फकीर के जहन में है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर एक जुमले को मैं अर्ज करता चलूं, अकीदा बचा के रखिएगा। ये अकीदा यहां भी काम आता है, वहां भी काम आता है। अगर ईमान महफूज होना तो फिर ईमान में हिदायत में और इजाफा किया जाता है। अगरचे कमी बेशी के एतबार से हमारे यहाँ फिक़े हनफी में इमाम आजम के यहाँ ईमान कमी बेशी के एतबार से नहीं बढ़ता, लेकिन ज़ौफ़ और कुव्वत के एतबार से तो बढ़ता है ना। किसी का ईमान बड़ा मजबूत होता है, किसी का ईमान बड़ा कमजोर होता है। जिसका ईमान मजबूत हो उसके लिए कहा गया कि अगर बीमारियां फैल जाए तुम्हारे इलाके में तो शहर छोड़ के ना जाओ, वहीं रहो। और अगर किसी का ईमान कमजोर है तो उसको चाहिए कि दाएं बाएं चला जाए। हो सकता है अगर उसको मजबूत उसको बीमारी लग जाए तो कहेगा इसकी वजह से लगी है, इसकी वजह से लगी है। मैंने बड़ी बहस, कीमती बहस को दो लफ्जों में समझा दिया। हमारे यहाँ कमी और बेशी के एतबार से, यानी मिकदार के एतबार से हमारे यहाँ इस ईमान नहीं बढ़ता है, लेकिन ईमान ज़ौफ़ और कुव्वत के एतबार से बढ़ता रहता है। अब जरा आगे बढ़े। ये ईमान जो है अगर बचा कर रखेंगे तो कुरान कहता है वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना आमनू। कुरान पाक कहता है, कुरान पाक कहता है जिसका तर्जमा यह है कि अल्लाह ताला ईमान वालों की हिदायत में और इजाफा फरमा देता है। और कुरान पाक ने आगे कहा वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबुन व खैरुम मरद्दा। फरमाया सुनो, ये पाकीज़ा नेकियां, ये बाकी रहने वाली नेकियां अल्लाह की बारगाह में बड़ी अजर व सवाब वाली भी है और बड़े अच्छे अंजाम वाली भी है। ये हमारे लिए फायदा है। अगर हिदायत बचा के रखेंगे तो ये हिदायत हमारी बढ़ती रहेगी। और आखिरत का फायदा क्या है, इसी किताब के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। मेरे सरकार की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह हल यबका अहदुन फिन्नारी। सरकार कोई जहन्नम में ऐसा भी होगा जो आखिर तक बाकी रहेगा। सरकार ने फरमाया हाँ हाँ फी कारी जहन्नमा, जहन्नम के गड़े में एक ऐसा ईमान वाला होगा जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा, उसका नाम हन्नाद होगा। इस जुमले पे जरा गौर करना भाई, इस वाकये को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आने जाने वालों के चेहरों को बाद में देख लेना, पहले हदीस पर तवज्जो कीजिए। सरवरे कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, हदीस पाक को रावी बयान कर रहे हैं। जब दौर हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सरकार अलैहिस्सलाम बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, हजरत मौलाए कायनात के पहले खलीफा, सिलसिला चिश्तिया के पहले शख्स जिन्होंने दुनिया में सिलसिला चिश्तिया को आम किया, हजरत ख्वाजा हसन बसरी बैठकर इस हदीस को सुन रहे हैं। सरवरे कायनात फरमाते हैं, आका करीम की हदीस को रावी बयान कर रहा है कि आखिर में उस जहन्नमी शख्स को निकाला जाएगा। और निकालने की कैफियत क्या होगी, हजरत जिब्रील अमीन जहन्नम के करीब से गुजरेंगे, उनको आवाज आएगी, वो सुनेंगे कोई मुनादी निदा लगा रहा है, या हन्नानो या मन्नानो या हन्नानो या मन्नानो। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकार रहा है। जिब्रील अमीन खुदा की बारगाह में जाएंगे, जाकर अर्ज करेंगे रईतुल अजाइबा, ये अल्लाह मैं अजीबो गरीब चीज देख करके आया हूँ। रब फरमाएगा सर उठाओ, क्या मामला है? हालांकि रब सब कुछ जानता है, ये तो अशरफ अली जैसे बदबूदार लोगों का तर्जमा है। और इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा हकीकत में कंजुल ईमान है।
अशरफ अली तर्जमा करके गया, वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, कहता है अभी तो अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को जाना ही नहीं। अब एक घामड़े आजम, तुझे मालूम होना चाहिए जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत का आलम यह है, वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, जमीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। जब इमाम ने तर्जमा किया तो कहा अल्लाह ने अभी तुम में से जिहाद करने वालों को आजमाया ही नहीं, उनका इम्तिहान लिया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अमीन जब रब की बारगाह में सजदा करेंगे, अल्लाह फरमाएगा जाओ जाकर के मालिक से जाकर कहो, दरोगाए जहन्नम से कहो, खाजिने जहन्नम से कहो इस बंदे को निकाल दे। जिब्रील अमीन जाएंगे, जाकर कहेंगे इस बंदे को निकालो, वो ताकि तलाश करेंगे, उनको वो बंदा नहीं मिलेगा। फिर जिब्रील अमीन आएंगे और आकर रब की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अब क्या हुआ? कहेंगे मौला वो तो मिल नहीं रहा है। रब फरमाएगा वो जहन्नम के फला फला गड़े के अंदर पड़ा हुआ है। हदीस पाक के अंदर अल्फाज हैं, उसके पैरों को उसकी गुद्दी से बांध दिया गया होगा, पेशानी से बांध दिया गया होगा, और उसको इज्तमाअत अलैहिल हय्यात वल अकारिब, उस पर सांप और बिच्छू जमा होंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब के बताने पर हजरत मालिक अंदर जाएंगे और जाकर के उसको फजज़बहु जज़बतन, एक बार उसको झड़केंगे, जिस्म के सारे सांप और बिच्छू नीचे गिर जाएंगे। उसके बाद फिर उसको उठाएंगे और उठाकर रब की बारगाह में पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा नहरे हयात में डालो। नहरे हयात में उनका जिस्म, उस शख्स का जिस्म बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। रब्बे कदीर फरमाएगा तूने फला फला गुनाह किया, तूने फला फला गुनाह किया, तूने फला फला गुनाह किया। हर बात पर यही अर्ज करेगा मौला अगर मैंने गुनाह किया था, तूने मुझे जहन्नम में डाला, 1000 साल तक सजा काट कर मैं आया, ए पाक परवरदिगार जहन्नम में जाकर के भी मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हुआ, तेरे एहसान से मायूस नहीं हुआ। आमदम बरसरे मतलब अब जिनकी शक्लें दाएं बाएं है, मैंने इसी जुमले को सुनाने के लिए इतनी लंबी हदीस पढ़ी है जिसको मुस्नद इमाम आजम के हवाले से लिया है। अब खोपड़ी और सर ऊपर उठाइए और होशो खिरत के साथ बैठिए, इस जुमले पर गौर कीजिए। ईमान कितनी कीमती चीज है। जब हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने इस हदीस को मुकम्मल सुना, फबका, आपकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। लोग कहने लगे हुजूर आप आखिरी जहन्नमी होने की बात कर रहे हैं। फरमाया जबान बंद कर, इस बात को सोच जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जा रहा है, ईमान की जमानत तो मिल रही है। इसलिए उलमाए बरेली पागल नहीं है, बहुत समझदार हैं। हम दीवाने हैं अपने मसलक के, और दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। क्या बात है, वाह वाह। जमाना सुन ले, हम जब तक जिंदा रहेंगे बदअकीदा शख्स की नींदों को हराम करते रहेंगे। बेशक। यहां तक आपने समझ लिया। परी को पढ़ा, कुरान बोला वल्लैली इज़ा सजा, हमने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज पर जाने को पढ़ा। कुरान बोला सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मैं तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूं। अब जाने ईमान पर ज़हनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा। अगर कोई आ भी जाए तो खुदारा कुरान पाक की आयतों को पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के आने को पढ़ा तो कुरान बोला वन्नजमी इज़ा हवा, सरवरे कायनात की हिदायत को पढ़ा तो कुरान बोला मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। कुरान पाक में सरकार की मजीद हिदायत को हमने देखा। कुरान बोला यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीना, हमने सरकार के अदब को पढ़ा तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम। कुरान कहता है ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम। कुरान कहता है लतुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही
वतुअस्सिरूहु वतुवक्किरूहु वतुसब्बिहुहु बुकरतन व असीला। हमने नबी के करने को पढ़ा, कुरान बोला वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हमने नबी के दस्ते पाक को पढ़ा, कुरान बोला इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। हमने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शान को पढ़ते रहे, नबी के इल्म को पढ़ा, कुरान बोला अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसाना। कुरान पाक को हमने पढ़ा, कुरान पाक को, कुरान में नबी के इल्म को पढ़ा, कुरान बोला वअल्लमका मा लम तकुन तालम। कुरान बोला आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। कुरान बोला वमा हुवा अलल गैबी बिदलील। कुरान के समंदर में शान मुस्तफ़ा, खसाइस मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा, सरकार की अजमत को पढ़ के हमने बरेली का रुख किया तो इमाम कहता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हजरत कहने लगे ये तो जाने ईमान की बात है, जाने कायनात भी तो मेरे मुस्तफ़ा है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, अज़मते रसूल, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, आमदे हुजूर खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। तीजा करने वालों 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। पंजतन पाक की निस्बत से गौर फरमा रहे हैं आप? जाने ईमान पर कुछ बातें अर्ज कर दूं। हजरत आ रहे हैं, आ रहे हैं हजरत? अच्छा टाइम है तो सुनिए ध्यान से। पहली दलील, भैया इंतजाम और इंसलाम करने वाले अगर ऐसा शोर करेंगे बात कुछ डिस्टर्ब मत कीजिए भाई। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कुन्तु कंज़म मख्फिया फअहबब्तु अन उअरफ़ा फखलक़तुल खल्क़ा। मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि अपनी रुबूबियत का इजहार करूं तो सबसे पहली मखलूक यानी मुस्तफ़ा करीम के नूर को मेरे रब ने पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे शेरे हिंदुस्तान, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, अज़मते खुलफाए राशिदीन, नारे हैदरी, अज़मते अमीरे मुआविया, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान। फोन की हिफाजत कीजिए और अपने जेबों की हिफाजत कीजिए, यही मौका होता है, दूसरे लोग फायदा उठा लेते हैं। फोटो वीडियो बिल्कुल ना लें भाई। सुभान अल्लाह। अब लगा लगा। शहजादे हुजूर ताजुश शरिया, शहजादे हुजूर ताजुश शरिया, आमदे सुल्तान, आमदे सुल्तान, काज़ीउल क़ुदात फिल हिंद। हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आंधी जिस दिन बरेली की चल गई, नजदी की लहलाती हुई फसल जल गई, भागा वहां भी खौफ से मैदान छोड़कर। अरे असजद रजा को देखा तो चर्बी पिघल गई। देखिए देखिए, बहुत कम बात।
पहले मेंबर से अर्ज करूंगा कि आप बैठ जाएं। आप हजरात हुजूर कायद मिल्लत के चेहरे ताबनाक का दीदार करते रहें और मुझे जो उन्वान दिया था ईमान जाने ईमान, अभी मैं पहले जुज़ पर पहुंचा हूं, दूसरे जुज़ पर तफसीली गुफ्तगू करना थी मगर वक्त बड़ा मुख्तसर है, चूँकि प्रोग्राम भी आपका काफ़ी देर से शुरू हुआ है। एक दो दलीलें देकर जाने ईमान को बचाना क्यों ज़रूरी है, इस पर गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह अपनी बात को ख़त्म करता हूं। मोहब्बत से ज़रा दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाने ईमान है। इस पर एक दलील नहीं, हमारे उलमा ने बेशुमार दलीलें पेश की है। मुस्लिम शरीफ के एक हदीस आपके गोश गुजार करता हूं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, 6 चीजें ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर मुझे और नबियों पर फजीलत अता फरमाई गई है। उनमें पहली चीज क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औतीतु जवामे अल कलिम, मुझे जामे कलिमात अता किए गए। अब जामे कलिमात की फहरिस्त अगर आदमी तलाश करे तो बेशुमार मिलेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बात आपके सामने तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ। जामतुर रजा का ये एक वाहिद इदारा ऐसा हिंदुस्तान में होगा कि जहां पर बेफजली ताला 2-3 जमातों में सरकार के जामे कलिमात को तलबा को याद कराया जाता है। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, मुझे जामे कलिमात अता किए गए। उसकी एक मिसाल देखिएगा, पूरे तसव्वुफ को आप पढ़ जाइए। तसव्वुफ के 2 मरहले होते हैं, पहला मरहला मुराकबा है, दूसरा मुशाहदा है। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया था ना, हदीस जिब्रील है, सरवरे कायनात से पूछा गया मल एहसान, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ताबुदल्लाह कान्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। आप पूरा तसव्वुफ उठा लीजिए। सरवरे कायनात ने फरमाया, रब की इबादत इस तरह करो जैसे तुम रब को देख रहे हो। यह है मुशाहदा। और अगर यह कैफियत नहीं है तो यह यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। यह है मुराकबा। सरवरे कायनात ने आगे इरशाद फरमाया, व नुसिरतु बिर्रुअबी, रौब के जरिए मेरी मदद की गई। एक हदीस के अल्फाज है, नुसिरतु बिर्रुअबी अमामी शहरन, मेरे सामने 1 महीने की मसाफत हो और तुम्हारे नबी यहां तशरीफ फरमा हो, दुश्मन वही कांपने लगता है, दुश्मन वही लर्जा हो जाता है, तरसा हो जाता है। इसी के हवाले से एक बात अर्ज करता हूं। हजरत अबू अकरब फरमाते हैं, अबू लहब का बेटा लहब मेरे नबी की शान में तौहीन किया करता था। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। आका ने अपने दस्ते पाक को उठाया, रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बक, ये अल्लाह इस पर कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। कुछ दिनों के बाद वो मुल्क शाम का सफर कर रहा था। अरबी के अल्फाज है, फखरजा युरीदु शाम फी काफिलतिन, एक बार अपने काफिले के साथ मुल्क शाम का सफर कर रहा था। वो थोड़ी दूर चला, कुछ दूरी पर जाकर उसने फनज़ला मंजिलन, एक मकाम पर ठहरता है और ठहरते हुए कहता है, इन्नी अखाफो मुहम्मदा। इस पर जरा, इस जुमले पे जरा गौर करें। अहले मंबर अपनी तवज्जो को दाएं बाएं मत लेकर जाइए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। नुसिरतु बिर्रुअबी, सरकार ने इरशाद फरमाया था, रौब के जरिए मेरी मदद की गई है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहें देख रही है गुले गुलजारे सियादत। सुभान अल्लाह, शहींशाह मसौली की आमद हो चुकी। सुभान अल्लाह। बैठिए आप हजरात, बैठिए इत्मीनान से। मना करूं या तकरीर करूं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। वीडियो जो बना रहे हैं वीडियो ना बनाएं, परहेज कीजिए भाई। एक बात को बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता है।
आपको बार बार समझाया जा रहा है, हमक हो आदमी बेवकूफ हो तो समझ में आता है, समझदार लोग भी बेवकूफी दिखा रहे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नुसिरतु बिर्रुब, मुल्क शाम के रास्ते में है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कहता है, इन्नी अखाफु मुहम्मदा, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी दूरी पर था फिर भी कह रहा है मुझे मोहम्मद अरबी का डर सता रहा है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के डर में वो वहां पर लर्जा और तरसा था। आका करीम अलैहिस्सलाम का खौफ उसके दिल में पैदा हो गया। आखिर उसके साथ वालों ने कहा, अजीब आदमी है, कहा मुस्तफा करीम है और कहा तू यहां मौजूद है और कह रहा है मुझे डर सता रहा है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम के खौफ में उसने वहीं अपना पड़ाव डाल दिया। उसके साथ वाले लोग उसकी हिफाजत में बैठ जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए हम ही पहरा नहीं देते। रब्बे कदीर अगर चाहता है तो जानवरों से भी ये खिदमत ले लिया करता है। अरबी के अल्फाज है, मतन के अल्फाज है, फजाअल असदु फज़हबा फंतज़ाहु फज़हबा बिही। इतने में एक शेर आता है, उसके बीच से खींचकर उसको ले जाता है और ले जाने के बाद उसका काम तमाम कर देता है और दुनिया वालों को जहन देता है कि मुस्तफा के दर के गुलाम तुम ही नहीं, हम भी मुस्तफा के दर के गुलाम हैं। सरवरे कायनात की बारगाह की खिदमत हम भी अंजाम दिया करते हैं। आखिर तीसरी बात मेरे नबी ने इरशाद फरमाई, उहिल्लत लियल गनाइम, माले गनीमत मेरे लिए हलाल किया गया, जो पहले हराम था मेरे लिए हलाल किया गया। व जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदन व तहूरा, सारी रुए जमीन को मेरे लिए सजदा गाह बना दिया गया, पाकीज़गी का सबब बना दिया गया। अगला जुमला मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ने सारी कायनात का मुझे रसूल बना करके भेजा है। इंसान भी सरवरे कायनात को रसूल जानते हैं और इंसानों के अलावा जानवर भी जानते हैं। एक वाक़ये का सहारा लेकर बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे इमाम आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, एक दिन मैं सरकार अलैहिस्सलाम की महफिल मीलाद में था, मीलाद मुस्तफ़ा पढ़ रहा था। थोड़ी देर में मैंने देखा दीवार पर एक बंदर आकर के बैठ जाता है और बहुत देर तक बैठा रहा। कहा उसके बाद हम जब क़याम ताज़ीमी के लिए तैयार हुए, सरकार के सलाम के लिए खड़े हुए, हमारे साथ ये बंदर भी मखसूस अंदाज में खड़ा हो जाता है और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब तक सलाम पढ़ते रहे तब तक ये बंदर भी खड़ा रहा। आला हजरत ने इस वाक़ये को जिक्र करके एक हदीस जिक्र फरमाई, मा मिन शैइन इल्ला व यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जिन्नी वल इंसी। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, कायनात की हर चीज इस बात का यकीन रखती है कि अल्लाह ने मुझे रसूल बना करके भेजा है। अगर इसका इनकार करते हैं तो सर्कस जिन करते हैं, सर्कस इंसान करते हैं। सरवरे कायनात जाने कायनात है, इस ईमान और अकीदे को बचा करके रखना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई इसमें सुस्ती बरतता है तो बस आखिरी रिवायत अर्ज करके आपके गोश गुजार करके बात को खत्म कर रहा हूं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यखरुजुन्ना मिन उम्मती मिन कुबूरिहिम फी सूरतिल क़िरदति वल खनाज़ीर लिमुदाहनतिहिम व कफ़्फ़िहिम अनिन नहयी व हुम यस्ततीऊना। इस जुमले पे जरा गौर करना। खानकाहों का जो हाल है हिंदुस्तान की, चंद खानकाहों को छोड़कर राफजियत की बदबू फैल रही है। पीर साहब जबान बंद करे बैठे हैं और अक्सर ये जुमला बोला जाता है, बरेली कर क्या रहा है। मैंने कहा बरेली को जो करना था वो कर रहा है। बरेली की मरकजियत तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइदे अहले सुन्नत की बुनियाद पर है। बेशक। बोलो है कि नहीं? इतने लोग हो, तस्दीक कर रहे हो मेरी बात की? कुछ भी मसला आया, हमारे अपने कहते हैं बरेली खामोश है, बरेली खामोश है। अगर किसी ने 2-4 किलो चावल दे दिए तो कह दिया बरेली खामोश है। बरेली क्यों नहीं पहुंचा चावल देने के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बरेली की मरकजियत को तुमने आटे चावल की बुनियाद पर इसको मेयार बना करके आपने जांचा है? नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दौर से बरेली को मरकज माना गया और आला हजरत ने किया क्या है? और कोई गैब क्या, तुमसे नीहा हो भला क्या किया है? ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो
जो मिला उनसे मिला। क्या किया है? खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। यही पैगाम, यही बस, यही बातें सरकार मुफ्ती आजम ने आगे बढ़ाई, हजरतुल इस्लाम ने आगे बढ़ाई। अगर आला हजरत कह के गए मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, तो मुफ्ती आजम ने कहा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया ने कहा जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। यही पैगाम लेकर हिंदुस्तान के बाहर हुजूरे कायदे मिल्लत भी जा रहे हैं। तो बरेली कल जो अपने मिशन को जारी रखे हुए था, आज भी उसी मिशन को जारी रखे हुए हैं। और याद रखना, हमारे लिए दौलत अहम नहीं है, हमारे लिए जाने ईमान बहुत अहम है। उसकी मोहब्बत को बरेली कल भी दिलों में आम कर रहा था, रासिक कर रहा था, आज भी कर रहा है। बस इस रिवायत को सुने, सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग अपनी कब्रों से उठेंगे जिनकी शक्ल बंदर और खिंजीर की होगी। हुजूर क्यों? फरमाया लिमुदाहनतिहिम, सब राजी हो जाएं, सबकी फिक्र लगी रहती है। हमने कहा फिक्र सिर्फ उसी की होना चाहिए, वैसी होना चाहिए जो फिक्र सरकार ताजुश्शरिया ने दी। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बेशक बेशक सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते लिमुदाहनतिहिम व कफ्फिहिम अनिन नही वहुम यस्ततीऊन। ये दीन में मुदाहनत बरतते रहे, सबकी चापालोसी में लगे रहे, तमल्लुकबाजी में लगे रहे, और ये बुराई को देख करके भी रोक नहीं रहे थे। वहुम यस्ततीऊन, जबकि ये ताकत रखते थे कि अगर पीर साहब एक जबान खोल दें तो उनके सारे मुरीदीन उसी नजरिए और अकीदे को लेकर के आगे बढ़ जाए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम शुक्र अदा करते हैं कि जिसके उर्स में आए हैं उसने भी फिक्र रजा को आम किया है। और आपने इस उर्स में जितनों को बुलाया है, चाहे हुजूर कायदे मिल्लत हो, हुजूर गुलजारे मिल्लत हो, हुजूर मुहद्दिसे कबीर हो या उलमा हो, ये सब के सब उसी फिक्र को आम कर रहे हैं। बस इसी बात को पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मसलक आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्सलाम वालेकुम।